बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको एक नई डायमेंशन बताएगा ब्रांड बिल्डिंग के बारे में, और आप उसको समझ के जो है बेहतर तरीके से जज कर सकेंगे जो भी ब्रांड्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं वो क्यों और किस तरह जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि ब्रांड जो है वो एक दिन में नहीं बनता, इसलिए जो है हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है कि उसमें क्या होगा, और वो बड़ा जो है इट्स नॉट अ वन डे जॉब। वी नीड टू have a clear thinking, we have to have a clear vision as to where this brand would fit in and what need it would fulfill, and how this brand would resonate with the customers. So let's move on and take this further. अब हम जो है we were building brand equity, and so while building this brand equity we need to depend, or we need to know that we should have the knowledge of the structure, and we need to understand what brand elements we would require in order to build that brand, what marketing programs would we need to integrate to build this brand equity, and what associations we would require that could be transferred to a brand and associated with other entities that are present in the market. While I'm saying this, keep in mind few brands that we come across every day. Keep in mind brands like Coke, Pepsi, Lux, Dalda, or maybe this, it could be any of the brands that you use every day or you come across every day into contact with. Because if you keep that in mind, you would be able to understand what I will be explaining to you in the coming slides. Now, in order to choose the brand elements, you need to understand that there should be some sort of a criteria to get those brand elements on board. So the 6 criterias for choosing those brand elements are memorability, meaningfulness, likability, transferability, adaptability, and protectability. Now, in order to have an offensive strategy, we use memorability, meaningfulness, and likability. For the defensive role, to maintain that brand equity, we are looking at transferability, adaptability, and protectability. Now, brand elements for memorability should inherently be memorable and attention getting. And why I am saying this? Because we want more recall and more recognition. उस कैटेगरी में जब भी ब्रांड की बात हो तो हमारा जो ब्रांड है वो शुड बी द नंबर 1 इन द कंसिडरेशन सेट टू बी recalled or recognized. The reason I'm saying this is that we want our brand to be number 1 when it is in that category that there is a need has arisen in the consumer's mind, and he or she should be the first priority would be given to our brand. The first brand he or she should be able to recall or recognize is our brand. ठीक है ना? So it is a consideration for every brand. ठीक है? So
one example that is given in your book is of a propane gas cylinder named Blue Rhino, featuring a powder blue animal mascot, जिसमें राइनो की या गैंडे की तस्वीर बनी हुई है, विद अ डिस्टिंक्टिव येलो फ्लेम. ठीक है, तो वो जो आग का शोला है वो उसमें दिखाया गया और उसके साथ वो गैंडे की तस्वीर बनी हुई है. सो लाइक वो जो है फौरन वो जो है ना ब्लू राइनो, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा. आप उसको देखेंगे ना, आपको याद रहेगी, क्योंकि वो दो डिफरेंट चीज़ें वो वहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं. सो लाइक फ़ौरन आपको जब भी वो गैस सिलेंडर की बात होगी तो फ़ौरन आपके जहन में ब्लू राइनो आ जाएगा. इसी तरह जो है जैसे ही आप वो रेड रेक्टेंगल देखते हैं कहीं पे भी, तो आपके जहन में फ़ौरन कोका कोला की इमेज आ जाती है. ठीक है ना. एक जो है वो छींटे का निशान जब आपके नज़र आता है तो सर्फ एक्सेल आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाता है. ठीक है ना. रेड रंग से कहीं एरियल, वो ए लिखा हुआ आपको नज़र आता है तो एरियल फ़ौरन आप रिकॉल कर लेते हैं. पीले रंग का अगर आप डब्बा देखते हैं टीन का तो आपके दिमाग में फ़ौरन डालडा आ जाता है. और अब वो जो पीला रंग है वो बाकी लोगों ने भी उसी तरीके से अपने डब्बों को बना लिया है. तो नाउ यू नीड टू सी कि वो जो डालडा का जो है लोगो आपको उसमें वहां पे नजर आता है कि नहीं आता. अब खाली पीले डिब्बे से बात नहीं बनती, लेकिन रिकॉल तो है ना. तो वो आपको याद है ना ये चीजें. जहां पे आप वो येलो रंग का एम देखते हैं तो फौरन आपको मैकडॉनल्ड्स फौरन रिकॉल कर लेते हैं आप. सो वो जो कंसिडरेशन सेट में जो रिकॉल है और वो जो नंबर 1 पे टॉप ऑफ द माइंड है, तो वो इसीलिए आप चाहते हैं कि जो एलिमेंट ऐसा हो कि फौरन आपको जो है अटेंशन आपको करे. वो पीला रंग या वो एम जो चीज़ भी है वो फौरन आपको अट्रैक्ट करती है. वो लाल रंग आपको फौरन अट्रैक्ट करता है. वो नीले रंग पे गोला जो है वो फौरन आपको अट्रैक्ट करता है. वो आपको पेप्सी की याद दिला देता है फौरन. अब इट शुड बी मीनिंगफुल. ठीक है ना. विदाउट मीनिंग इट वुड नॉट मेक सेंस टू योर कंज्यूमर्स. ठीक है ना. तो इट कुड बी अ डिस्क्रिप्टिव और अ परसुएसिव कंटेंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. तो पहला क्या है कि मीनिंगफुलनेस में पहली चीज क्या है कि it should give general information about the nature of the product category. और दूसरा specific information about particular attributes and benefits. तो nature of the product category जो है क्या मतलब है कि you need जो है ऐसा मीनिंगफुल हो कि आप जब जैसे देखें तो वो जो है आपको फौरन समझ में आ जाए. जो सेलियंस है, ब्रांड अवेयरनेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. और जो है दूसरा चीज जो एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं वो इमेज की बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है. उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे फौजी के कॉर्नफ्लेक्स हैं. जहां फौजी लिखा हुआ आता है फौरन ब्रेकफास्ट सीरियल आपके दिमाग में आ जाता है ना. उसमें एक घोड़सवार है जिसके हाथ में एक फ्लैग है. वो जो है वो फौजी सीरियल्स का लोगो वो आप देखते हैं तो आपको फौरन याद आ जाता है. या वो फौजी नाम ही आप देखते हैं तो आपको याद आ जाता है. यू नीड नॉट सी द होल पैकेट और द होल मैसेज. वो आपको फौरन जो है वो आपको बता देता है कि जी ये कॉर्नफ्लेक्स होंगे, ब्रेकफास्ट सीरियल की कैटेगरी में आ रहा है. ठीक है ना. और उसका इमेज क्या है, हेल्थ कॉन्शियस पीपल. उसको पोजीशन इस तरह किया गया. सिमिलरली कैलॉग्स है, वो भी इज इन द सेम कैटेगरी. और वो जो टाइगर उसका कैलॉग्स का है वो कहीं पे भी बनाता है वो फौरन जो है आपको बता देता है. इसी तरह मिक्की माउस जहां बना होता है वो फौरन आपको डिज्नी के बारे में याद करा देता है. तो वो फन एंड एक्साइटमेंट और वो सारी चीजें जो एंटरटेनमेंट
वो आपके दिमाग में आ जाता है। फिर जो है लाइकेबिलिटी। लाइकेबिलिटी क्या है कि जी, डू कस्टमर्स फाइंड द ब्रांड एलिमेंट एस्थेटिकली अपीलिंग? डिस्क्रिप्टिव एंड परसुएसिव एलिमेंट्स रिड्यूस द बर्डन ऑन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस टू बिल्ड अवेयरनेस। अब यहां पे जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं, जो पैकेजिंग आप यूज कर रहे हैं, क्या वो ऐसे हैं कि लोगों को वो अच्छे लगे, लोगों की आंखों को अच्छे लगे, अपीलिंग हो, एस्थेटिकली जो है खूबसूरत लगे, या ऐसे हैं कि जिनको लोग देख के एकदम रिपेल हो जाएं? कई दफा जब आप जाते हैं मार्केट में तो कुछ कपड़ों के डिजाइन ऐसे होते हैं कि जो आप देखते ही आपको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। कुछ चीजें, मतलब कोई गाड़ी का मॉडल ऐसा होता है जो आप देखते हैं तो आपको अट्रैक्ट करता है। आपको कोई पैकेट ऐसा होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना? तो पैकेजिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा उस पर एम्फेसिस किया जाता है ताकि लोग उसको जो है उन देखें, उसको उनको पसंद आए, वो उसको खरीदने पे मजबूर हों। ठीक है? और वो जो है वो आपकी कम्युनिकेशन से जो है थोड़ा सा बर्डन हटा लेता है और आपकी अवेयरनेस के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है। इस एस्थेटिकली अपीलिंग की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि वहाँ ओमेगा के लिए जब मैं काम कर रहा था तो हमें एक हेड ऑफिस की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस आई कि आप जो है, जो आपकी विंडोज़ हैं जिसमें आपने घड़ियां डिस्प्ले की हुई हैं, वहाँ पे आप जो है अपनी पैकेजिंग को भी डिस्प्ले करें। बिकॉज पूछने में मालूम पड़ा कि ये जो है, जो आपकी जो पैकेजिंग है वो इतनी एस्थेटिकली अपीलिंग है लोगों को कि समटाइम्स वो जो है वो उस पैकेजिंग को देख के ही जो है आपकी घड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यू कैन मेक अ सेल। और वो इट वॉज वेरी ट्रू, बिकॉज वो जो उसका जो डब्बा था और जो उसके जो पेरिफरीज थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई थी कि घड़ी जो है जब उसमें वो पैक करके दी जाती थी तो लोग समझते थे कि कोई बहुत ही बड़ा, कोई वैल्यूएबल जो है ना गिफ्ट उनको दिया जा रहा है। तो जो जगह, जो शोरूम्स हैं वो भी इसलिए आजकल अगर आप देखें तो नए तरीके से बनाए जा रहे हैं। उसमें ज़्यादा चीज़ें डिस्प्ले नहीं होती हैं, लेकिन पिक्चर्स और बाकी जो है ना ब्रांड एलिमेंट्स को इस तरीके से वहाँ पे रखा जाता है कि वो आपको जगह अपील कर रही होती है, आपको अट्रैक्ट कर रही होती है। आप खामखा ही आपका दिल करता है कि उस शॉप के अंदर जाएं और देखें कि क्या चीज़ अवेलेबल है। एक ज़माना था कि जब आप शॉप्स में जाते थे तो वो हर चीज़ जो है वो उसके अंदर रखी होती थी और वो ओवर क्राउडेड लगती थी। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो शॉप्स हैं वो खाली नज़र आती हैं आपको। ये नहीं कि उनके पास जो है प्रोडक्ट नहीं होती बेचने के लिए, लेकिन वो जो एक क्राउडिंग थी वो एस्थेटिकली जो है वो इतनी अपील नहीं करती थी। लोगों को जो है स्पेस जो है वो नज़र नहीं आती थी, तो उनको जो है वो ब्रीदिंग जो स्पेस होती वो कम लगती थी, तो उनको सफोकेशन होती थी। तो ट्रेंड चेंज हो गया। अब जो है वो मिनिमल चीज़ों के साथ वो बैठते हैं। वो आपको वहाँ पे अगर आप जब जाते हैं तो वो आपको कैटलॉग दिखाते हैं कि जी आप कैटलॉग में देख लें। कुछ चीज़ें डिस्प्ले पे होती हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स वो कैटलॉग पे होती हैं, या वहाँ पे जो है उन्होंने टैबलेट्स रखी होती हैं जिसके ऊपर वो उनकी सारी पिक्चर्स होती हैं। आप उसमें से देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं और आप उसको जो स्टोर में जो मैनेजर होता है या जो फ्लोर पे जो लोग फिर रहे होते हैं आप उनको बताते हैं और वो चीज़ पीछे स्टोर में से लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं लाके। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वो जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया और लोगों की लाइकिंग और एस्थेटिक जो अपील है उस पे ज़्यादा जोर आ गया।
फिर जो है जो आपके एलिमेंट्स हैं क्या वो इजीली जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, कैटेगरी एक्सटेंड हो सकती है। फिर वो कहता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डज द ब्रांड एलिमेंट ऐड टू द ब्रांड इक्विटी अक्रॉस ज्योग्राफिक बाउंड्रीज एंड मार्केट सेगमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपकी ब्रांड इक्विटी पे कितना फर्क डाल रही है, और जो है अक्रॉस द बाउंड्रीज और अक्रॉस बाउंड्रीज और मार्केट सेगमेंट्स में वो किस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। सो लाइक वो जो है लाइन एक्सटेंशन जो है आपको देखने मकसद, शैम्पू, सोप, वही ब्यूटी सोप है, फिर वो जो है वो जर्म कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वो एज डिओड्रेंट भी इस्तेमाल हो रहा है। सो लाइक ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके से इस्तेमाल होंगे, क्या वो ट्रांसफर हो सकते हैं इजीली। अब जो है लेट्स टेक, हम BMW की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस और लग्जरी की बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी, ठीक है ना। सो दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन परफॉर्मेंस एंड लग्जरी, बट क्योंकि मार्केट सेगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, तो उन्होंने जो है वो मिड साइज कार्स एंड देन यू नो फुल लग्जरी कार्स एंड यू नो परफॉर्मेंस कार्स, उनको थोड़ा सा उन्होंने मजीद डिफ्रेंशिएट कर दिया है डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ, और वो अपनी, लेकिन एलिमेंट्स जो कोर एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने चेंज नहीं किया। यू हैव अ 3 सीरीज, यू हैव अ 5 सीरीज, यू हैव अ 7 सीरीज, सेम इज द केस कि अब जो है वो मर्सिडीज में भी है। इवन अगर आप देखें तो टोयोटा जो है इज नाउ सर्विसिंग 64 segments in the society worldwide. 64 segments. That means it has got, जो Toyota की values है, core values, they are not changing, but they are servicing 64 segments. Like there are 64 different sort of segments. They have identified who would like to own a car. तो जो उसकी कैटेगरी एक्सटेंशन हैं वो इस तरह जा रही हैं। It is a huge market that they are servicing. आप कॉस्मेटिक्स में देख लीजिए, there are 5 different kinds of lipsticks available. Ordinary lipsticks हैं, ठीक है ना, then there are lipsticks with lip gloss in it. There are lipsticks who are not easy to remove, that they stay on for people who eat lipsticks, and then there are 2 other kinds which I don't know, but somebody was mentioning them the other day. You have mascaras which are a simple extension of a mascara. Then you have perfumes, in which you have colognes, you have aftershaves, you have UD toilets, you have perfumes, and then you have body sprays and stuff. So like वो जो है आपका जो ब्रांड है, can it do that? अब adaptability हर ब्रांड में अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। इट इज देयर फॉर अ सर्टेन सेगमेंट, इट हैज अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज, ठीक है। सो इफ योर ब्रांड इज अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, इट इज ईजियर टू अपडेट एंड चेंज, देन it would move as the customer grows. So the values and opinions of the consumer, as they change, so would the brand. और वो जो मैं आपसे पीछे ट्रांसफरेबिलिटी की बात कर रहा था, ठीक है ना, वो ब्रांड एक्सटेंशंस की या लाइन एक्सटेंशंस की बात कर रहा था, तो उसमें क्या है, वो 64 सेगमेंट्स हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह कस्टमर ग्रो कर रहा है उस तरह उसकी जो ना उसके साथ साथ ब्रांड भी ग्रो कर रहा है। सो फॉर समबडी
who is, you know, who has gotten out of a college or a university, और उसकी वो पहली जॉब वो लेता है, तो obviously if it is not being provided by, you know, the car is not provided by the company, तो वो उसकी जो पहली चॉइस होगी वो would be a small car, ठीक है ना, जो वो अपनी इनकम में से खरीदेगा. तो इट कुड बी, यू नो, समथिंग लाइक, यू नो, Toyota Passo or a Toyota Vitz, and then it, you know, he or she would move to a Corolla, and from Corolla to, you know, a Camry, as he or she is growing in the society and in the organization and in the stature. तो वो नीड डिफरेंट होती जाएगी, और वो उसके साथ साथ तो जो है कंपनी भी अडेप्ट कर रही है ना, उसके साथ साथ उसकी नीड्स को देखते हुए, उसकी कंफर्ट को, उसका सोशल स्टेटस को देखते हुए वो एडिशनल चीज़ें देती जा रही है, एडिशनल लग्जरी देती जा रही है, और वो एक बेहतर गाड़ी प्रोवाइड कर रही है. तो दूसरी तरफ जो लोगोज हैं, जो करेक्टर्स हैं, उनको रीवैम्प कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो मोर मॉडर्न और रेलेवेंट लुक दे. पिछले दिनों पेप्सी ने अपना लोगो चेंज किया, ठीक है ना, टोयोटा ने अपना लोगो चेंज किया. व्हाई? बिकॉज दे वांटेड, यू नो, their customers to feel that they are, you know, up to the mark, and, you know, they are more in the market or in the society. उनके लिए रेलेवेंट रहना चाहिए ना यार. उनको ये नहीं देखना चाहिए कि यार ओहो ये तो वही पुराने घिसे पिटे लोग हैं. वो जो घिसे पिटे लोगों वाला जो है वो काम नहीं हो रहा. वो जो है जिस तरह सोसाइटी मूव कर रही है, चेंज हो रही है, उसी तरीके से जो ब्रांड है वो भी चेंज हो रहा है. वो अपने लोगों के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए आसानी पैदा कर रहा है, ताकि उनको जो है अपना ब्रांड छोड़ना ना पड़े, किसी कंज्यूमर जो है वो किसी कंपटीशन के पास ना चला जाए. इसीलिए आप देखेंगे कि नए से नए मॉडल आ रहे हैं और नए से नई गैजेट्स जो हैं उसमें यूज़ हो रही हैं, और वो जो है आप नई से नई शेप्स आ रही हैं, जो कि समटाइम्स बिल्कुल समझ में नहीं आती कि यार ये ऐसी शेप की गाड़ी क्यों बनी है, बट इट इज़ देयर. अब प्रोटेक्टेबिलिटी, ब्रांड्स का जो ट्रेड मार्क है, जो नेम है, जो लोगो है, जो सिंबल है, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं है जेनरिक के जो है वो हर एक इस्तेमाल कर सके, और कल को जो है कोर्ट में अगर केस जाए तो वो कहे कि नहीं, दिस इज़ नॉट ऑन, ये जो है दिस इज़ अ जेनरिक नेम, आप इसको जो है पेटेंट नहीं कर सकते, आप इसको ट्रेडमार्क नहीं बना सकते. वहाँ पे आके गड़बड़ पैदा हो जाती है, ठीक है ना. सो ऐसे ब्रांड एलिमेंट्स को आप चूज़ करें जो कि आप इंटरनेशनली प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है ना, और उनको ऐसी जगह रजिस्टर कराएं जहाँ पे जो है वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हो, और वो जो है अप्रोप्रिएट लीगल बॉडीज़ हो, ताकि जो है कोई उसको कॉपी ना करे. क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो ब्रांड्स बहुत जल्दी कॉपी हो जाते हैं, स्पेशली जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो कॉपी हो के मार्केट में आ जाते हैं. नॉट एवरीबडी कैन बाय दोज लग्जरी ब्रांड्स, इट्स रिडिकुलस. अगर आप एक पर्स ले लें, लेडीज़ पर्स, हैंड बैग जैसे हम बोलते हैं, और गुची एक बहुत बड़ा ब्रांड है फैशन इंडस्ट्री में, या लुइस वीटॉन जिस पे LV लिखा होता है, जो एक हैंड बैग है is like for what, $3,500, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट जो एक उनका हैंडबैग करता है इज नथिंग लेस देन $1,500. अब अगर आप $1,500 को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो हाउ मच मनी वुड दैट बी? इट्स वेरी एक्सपेंसिव.
So not everybody can, afford it. Even, in countries like US and, Europe, people cannot afford such extravagance. तो वहाँ पे जो है लोग कॉपी करवाते हैं, चाइना से, फिलीपींस से, वियतनाम से, उसकी कॉपीज बनती हैं और फिर वो मार्केट हो जाती हैं. And they make very good copies, and sometimes, people sell those copies as, telling them that this is the original thing. If, it is properly protected, you could, go and, fight it out with those people who are, copying your brand and eating up your profits. So, इस तरह जो है यू आर विगरसली डिफेंडिंग ट्रेडमार्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड कंपैटिटिव इन्फ्रिंजमेंट. आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं जस्ट बिकॉज कि वो इलीगली कॉपी हो जाती है और फाइल्स शेयर हो जाती हैं. और अगर आप को याद हो तो कुछ अर्सा पहले, क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, तो नैपस्टर एक कंप्यूटर विज था, जो सॉफ्टवेयर विज था, जिसने जो है एक वेबसाइट बनाई थी जहाँ पे वो फ्री में म्यूज़िक आपको डाउनलोड करने देता था और बहुत सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से लोग बहुत तंग आए क्योंकि उनकी जो है सीडीज़ और कैसेट्स और रिकॉर्ड्स वगैरह जो हैं वो बिकने बंद हो गए थे. सो वहाँ पे क्योंकि लॉज जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है केस किया, जीत गए और उसको जो है उन्होंने जेल करवा दी और उस पर पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर्जाना भी डाला गया बाय द कोर्ट. सो प्रोटेक्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द की थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट. नाउ टैक्टिक्स फॉर ब्रांड एलिमेंट्स. A variety of brand elements can be chosen that inherently enhance brand awareness or facilitate the formation of strong, favorable and unique brand associations. अब इन ब्रांड एलिमेंट्स के लिए जो है हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं ताकि we could enhance that experience with the consumer. We could enhance that experience in terms of favorability, recall. ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के मार्केटिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं, बट उन मार्केटिंग प्रोग्राम्स को रन करने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स विद अस, थिंग्स विच कुड मैटर. और उसमें जो है थिंग्स विच कुड मैटर एंड हेल्प अस आर ब्रांड नेम्स, URLs, लोगोज, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, स्लोगन्स, पैकेजिंग. अब brand names, like any brand element, brand names must be chosen with 6 general criteria of memorability, meaningfulness, likability, transferability, adaptability, protectability in mind. अगर हम नाम की बात कर रहे हैं, ब्रांड नेम की बात कर रहे हैं, तो जो 6 क्राइटेरिया जो हमने पहले बात की थी, जिसमें मेमोरेबिलिटी, मीनिंगफुलनेस, लाइकेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आप ब्रांड नेम को चूज करें. रीज़न बीइंग कि अगर ब्रांड नेम जो है आसान होगा और याद करने में और उसको पढ़ने में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो उनको याद रह जाएगा. या वो ऐसा उसको डिफरेंटली आप स्पेल कर देते हैं एट टाइम्स कि लोगों को याद रह जाए, क्योंकि डिफरेंट होती है ना स्पेलिंग, तो वो लोगों को एकदम स्ट्राइक करती है. या उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसे उसमें होते हैं, या जो उसके एट्रीब्यूट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि उस नाम में मेंशन हो रहे होते हैं, जिससे लोग उसको एसोसिएट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं. तो इससे जो है आपको जो है लोगों को वो याद भी रह जाता है और वो जो है ट्रांसफ़र भी हो सकता है, अडैप्ट भी हो सकता है और उसको आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं. अब जो नाम जब आप चूज़ करते हैं तो लाइक बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनमें
हो सकता है कि शायद ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ना हो, क्यों, लेकिन बहुत सारों में हैं भी। अब जिस तरह मर्सिडीज बेंज आपने देखा, अब बेंज जो है वो सरनेम है उस आदमी का जिसने वो गाड़ी बनाई थी, और मर्सिडीज जो है वो उसकी बेटी का नाम है जिसने वो गाड़ी बनाई। तो मर्सिडीज बेंज, अब दिस इज अ नेम ऑफ अ लेडी एंड द सरनेम, ठीक है ना। फोर्ड इज ऑल्सो नेम ऑफ द पर्सन हु हैड इन्वेंटेड दैट कार। तो ये लोगों के नामों के ऊपर है। इस तरह हमको बहुत सारी जो है चीजें मिल जाएंगी। जैसे एरियल है, एरियल इज नेम ऑफ अ ग्रीक गॉड। ठीक है। सो ये जो ब्रांड नेम्स हैं लोगों ने सोचे हुए होते और उनका कनेक्शन किसी ना किसी चीज के साथ होता ताकि वो उसको एसोसिएट कर सके। ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि जो है आपने कोई ब्रांड नेम ऐसा सोच रहे हैं कि जिसका कोई मीनिंग ही ना हो। इसी तरह सिमिलरली अगर आप सुजुकी देखें या सोनी देखें, ये भी फैमिली नेम्स हैं। आपको देखना है कि ये किस तरीके से जो नाम आपकी प्रोडक्ट का जो भी आप सोच रहे हैं या अपने ब्रांड के लिए सोच रहे हैं वो ऐसा यूनिक हो कि लोगों को याद रह जाए। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले वो क्या कहता है कि जी टू क्रिएट अवेयरनेस, मकसद कि ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगा, सिंपलिसिटी एंड ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग, फेमिलियरिटी एंड मीनिंगफुलनेस, डिफरेंशिएटेड, डिस्टिंक्टिव एंड यूनिकनेस। मकसद ये एलिमेंट्स उस नाम को चूज करते हुए आपके पास, ये सारे नहीं हो सकते हैं, सारे हो भी सकते हैं। सो देखिए कि किस तरीके से। तो और अगर उसके अंदर जो है जिस तरह मैंने पहले बात की कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट या बेनिफिट है जो उस प्रोडक्ट की पोजीशनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है क्योंकि लोग उसके साथ एसोसिएशन कायम कर लेते हैं। सो अब जो है जैसे कोला है, कोला इज अ ब्लैक फिजी ड्रिंक। तो लाइक उन्होंने कोका कोला, पेप्सी कोला, अमृत कोला, ठीक है ना। सो लाइक इट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस तरीके से ओमेगा इज ऑल्सो अ ग्रीक, इट्स अ सिंबल विच इज देयर, एंड देन अगेन जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी में या ग्रीक वो लैंग्वेज में यूज होता है। इस तरह जो है जीएम की कार है सैटर्न, सैटर्न इज अ प्लैनेट, तो उन्होंने उससे उसको एसोसिएट किया। मरकरी, मरकरी इज एन एलिमेंट which is very different. It has got it's a metal but yet again it's a liquid. तो वो जो है लोग जो है वो इस प्रॉपर्टीज से आई डोंट नो उन्होंने उसको किस तरीके से गाड़ी से एसोसिएट किया, बट देन अगेन इट इज देयर। मरकरी इज ऑल्सो नेम ऑफ अ प्लैनेट, सो अगेन हो सकता है कि उन्होंने उस तरीके से किया। तो लाइक जो अवेयरनेस या एसोसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की गई। हम जब अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो हम भी तब कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो मुस्लिम नेम्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं से हमने लिए हुए, हमारे बुज़ुर्गों के हैं, ठीक है ना। हम जो हैं अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है उनमें से हम कोई एक सिर्फ चूज़ कर लेते हैं और हम वो अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, ठीक है। सो जो नेम है इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो it should be it should be able to create awareness. It should be have some sort of an association so that consumers can relate to it and recall it or recognize it whenever the need arises.
अब प्रोसीजर क्या है फॉर नेमिंग अ ब्रांड? क्या कहता है? यू नीड टू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स, you need to generate more names, screen initial candidates, study candidate names, research the final candidates, select the final name. So what you need to do is, first of all you need to define the objectives. आपके objectives क्या हैं? What does your brand stand for? ठीक है ना? तो when you understand what your brand stands for, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, what type of need it's fulfilling, तो it would be easier to come up with different names. And then you should have a list of different names that you could give to your brand. और the best is कि आप you generate one name or 10 names and pick out synonyms of those names. Maybe the name that you have chosen does not fit, but one of the synonyms would fit. आजकल जो है लोग अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को जो है डिफरेंट किस्म की नाम यूज़ करते हैं. जैसे फॉर कैफ़े उन्होंने कहा कि वाई शुड वी पुट कैफ़े, वाई नॉट चाय खाना, बिकॉज वी आर टी ड्रिंकर्स, वी आर नॉट कॉफ़ी ड्रिंकर्स. और हमारे मुल्क में कॉफ़ी का इतना जो है यूजेज नहीं है, हम लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, कहवा ज़्यादा पीते हैं. तो चाय खाना, a good name for a cafe. It makes sense to people. It connects with people. है ना? So वो जो है, जो आपकी अवेयरनेस की बात है या अडेप्टेबिलिटी की बात है, it is there. ठीक है ना? तो जब आप स्क्रीन कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है ना, यू नीड टू स्टडी. जो स्क्रीन करने के बाद, जो आप शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो नाम आपके पास रह जाएंगे, उनको जो है स्टडी करें कि हाउ इट वुड इवॉल्व, हाउ पीपल वुड थिंक, हाउ पुट देम पुट दोज नेम्स इनटू हाउ इट वुड बी, योर ब्रांड वुड बी पोजीशनड इफ दैट नेम इज देयर फॉर दैट ब्रांड. लोग जो है उस पर किस तरह रिएक्ट कर रहे होंगे, आपका जो मार्केटिंग मैसेज है वो कैसे जो है जाएगा लोगों के पास. वुड इट बी एबल टू जनरेट इंटरेस्ट? मैनी एट टाइम्स दे वुड बी नो इंटरेस्ट एट ऑल. लोगों को बिल्कुल वो जो है नहीं करेगी, अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है ना? फिर उन नामों के लिए रिसर्च करें. डू दे रियली फिट इनटू दोज एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट्स दैट यू आर ऑफरिंग, एंड देन यू कम अप विद योर फाइनल नेम. हम आजकल जब ये नामों की बात आती है, कुछ होती है, तो हम हमेशा जो है वेस्ट की तरफ देख रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कौन सा नेम जो है इज गोइंग, लोगों ने किस तरह इस्तेमाल किया, वो लोगो जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया. अभी हम आगे बात करेंगे उन लोगोज की भी और यूआरएल्स की भी और बाकी सारी सिलसिले भी जो है. अभी अगर हम नाम की बात करें तो मकसद हम वहाँ से वी ब्रिंग दोज ब्रांड नेम्स हेयर इन पाकिस्तान. हाउ मैनी पीपल नो दोज ब्रांड्स? सोचने की बात है ना. There is a very small percentage of people who know those brands. Go now, we have internet at every nook and corner of Pakistan available, and people surf the internet and they come across those brands one way or another, but not everybody is familiar with those brands. But then again,
we are happy. So while we are at it, we need to understand कि यार ये जो brand names है ना, ये इतना आसान नहीं है, because the category, all the categories are now being filled in with lot of competition. We have plenty of new brands coming in, and then we have big brands who have smaller brands taking their places in different categories. अब अगर आप देखें तो जैसे big brands like Lever Brothers, Procter and Gamble, they are now into everything. They are into soaps, they are into detergents, they are into toilet cleaning, they are into hand washing, they are into perfumes, they are into shampoos, you name it. Everyday usage products belong to these two big giants. Now Lever Brothers, Procter and Gamble, they are both family names. And these family names have individual brands like Lux, Sunsilk, Surf, Vim, Cami, Pantene, Pert, Head and Shoulders, Boss perfumes, Herbal Essence shampoo, Ivory, Downy, you name it. So all of these brands are there. So how did they come up with all these things? They have made different companies, and they have given them the autonomy of choosing their brand names and choosing the attributes and choosing the brand elements which they deem fit. And sometimes within the company they are fighting with each other as competition. But what do you think? They don't go through this list? They all do. And they define their segment that they are targeting, and then they start looking at the different names which would matter to that segment, so that they could click. Then the other part which is very important is packaging. Like I said कि हमारे जो है ओमेगा में we got this instructions from the head office कि you should display the packaging in the windows, because that packaging is very attractive and people find people take interest in how this would be packaged, because whenever they are buying a gift, watch is one of the considerations for people in Europe and East Asia, even here in Pakistan. हमारे यहाँ तो एक जो है वो जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो किसी की शादी होती है, और उस शादी पे जो है वो एक घड़ी जो है वो अपने दामाद को ज़रूर पहनाते हैं लड़की वाले, तो उस वक्त वो खरीदी जाती है. उसके अलावा भी लोग लेते हैं और गिफ्ट देते हैं, लेकिन ये कि एक वो मेजर एक एलिमेंट है, तो उसकी जो पैकेजिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस डब्बे में दिया जाएगा, ज्वेलरी जो है वो किस डब्बे में आएगी. अगर आप देखेंगे जितने नए डिजाइनर लॉन्स हैं वो जो है उनकी जो पैकेजिंग है वो टोटली डिफरेंट है. इवन मर्दों के लिए भी जो कपड़ा है वो उसके लिए बाकायदा उन्होंने नए जो पैकेजिंग आई है उसमें वो डब्बों में वो पैक करके पहले प्लास्टिक में डब्बे में डाल के फिर उसके साथ वो एक हैंड बैग होता है बड़ा फैंसी सा बना हुआ जिसमें वो डाल के दिया जाता है. व्हाई? बिकॉज
वो जो है वो इट सेज अ लॉट अबाउट द पर्सन हु इज बाइंग दैट प्रोडक्ट. मैनी टाइम्स जब आप मार्केट में घूम रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वो खवातीन जो हैं वो कागज के बड़े अच्छे खूबसूरत से बैग्स होते हैं, वो फ्लैश कर रही होती हैं बिकॉज इट हैज अ बिग लोगो किसी ब्रांड का उसके ऊपर होता है. तो इट सेज अ लॉट अबाउट दैट लेडी वॉकिंग अराउंड इन द मार्केट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रांड शी लाइक्स. इस पैकेजिंग की वजह से ही अगर आप देखें, नेस्ले प्योर लाइफ की बात करता हूं मैं आपसे. नेस्ले प्योर लाइफ ने अभी तक आई गेस 6 दफा अपनी बॉटल का डिजाइन बदला है, मे बी मोर, आई मे बी रॉन्ग. ठीक है ना. तो क्यों बदला है? बिकॉज वो इतना पॉपुलर हो जाता था कि अगली जो बॉटल जो उसका कंपटीशन था, दे स्टार्टेड कॉपिंग देम. तो वो जो है वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते थे बिटवीन पैकेजिंग. लोग जो है कि यार ये नेस्ले प्योर लाइफ की बॉटल हमने उठाई है या हमने XYZ कोई और वाटर बॉटल उठा ली है. उसका डिजाइन, उसका कैप का कलर, ठीक है ना, वो सब कॉपी कर लिया जाता था. इसीलिए आप देखें कि लोग जो है पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं और उनके कलर्स के ऊपर जो है बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है, क्योंकि बिकॉज इट सेज अ लॉट अबाउट द ब्रांड, इट्स एट्रीब्यूट्स, इट्स एलिमेंट्स. अगर आप देखें तो एट टाइम्स आप सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व, गो टू अ सुपरमार्केट, go to a section where all these soaps and shampoos and toothpaste are lying. You would not even look at what the packages is saying. You would just pick up a red color or a blue color or because on top of your mind, in the memories, you would know that if you have picked up this blue box, it would mean a McLean's. A red box, it would mean a Colgate. A white wrapper means Lux. A green wrapper, a Palmolive. आप उसको देखना भी गवारा नहीं करते बिकॉज इन योर माइंड यू नो, क्योंकि वो पैकेजिंग जो है वो ऐसी हुई होती है कि आपको फौरन याद आ जाता है. हार्पिक की बोतल पे जो है उसकी जो नोजल है वो टेढ़ी बनी हुई है विद अ रेड कैप. तो द ब्लू कलर एंड द रेड कैप इमीडिएटली यू वुड नो वो डिफरेंट पैकेजिंग है, इसलिए आपको याद रह जाती है. डोमेक्स आया, उसका भी यही इसी तरीके से. जो येलो कलर है वो आपको हमेशा लेमन को डिपिक्ट करता है. जो ग्रीन कलर है वो सेडर को या लिवेंडर को डिपिक्ट कर रहा होगा. जो रेगुलर है वो ब्लू में आपको नजर आ रहा होगा. डोमेक्स की बात कर रहा हूं. ऑरेंज कलर जो है वो आपको हमेशा ऑरेंज याद, यू कैन इमीडिएटली रिलेट कि सिट्रस फ्लेवर होगा कोई ना कोई. टैंक के डब्बे को देख लीजिए. तो जो पैकेजिंग है वो बड़ा मैटर करती है. मकसद इवन अगर आप वो देखें, जो टैंक का जो नया आया उसके अंदर वो उन्होंने बाकायदा वो हैंडल नहीं दिया, लेकिन उसमें उन्होंने ग्रूव बना दिया कि आप उसको पकड़ लें. ईज ऑफ यूज है, आप उसे उठा के रख लेंगे. आप जो है पैकेजिंग चेंज करते हैं तो आप उसके साथ साथ जो है लोगों का यूजेज का तरीका भी डिफरेंट कर देते हैं. ठीक है. और आप जो है इस पैकेजिंग को चेंज करने से आप क्या कर रहे हैं कि उनको उनके यूजेज का तरीका भी कई दफा चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. उसकी मिसाल
मैंने आपसे कुछ 1 या 2 लेक्चर पहले बेकिंग सोडा की बात की थी। अब बेकिंग सोडा जो है वो एक पैकेट में भी मिलता है, वी कुड जस्ट यूज फॉर बेकिंग, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं आप। एंड देन उसकी जो पैकेजिंग है वो उन्होंने चेंज कर दी बेकिंग सोडा की, सच के वो जो है उसके ऊपर उन्होंने एक परफोरेटेड सी कवरिंग दे दी और उसको एक स्क्वायर सा बॉक्स बना दिया। उस परफोरेटेड जो कवरिंग थी उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था, जो कि आप हटा के उस बॉक्स को आप अपने फ्रिज में रख देते थे और वो फ्रिज में एज डिओड्राइजर इस्तेमाल होने लग गया। हालांकि आप चाहें तो उसे कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पैकेजिंग ऐसी चेंज कर दी कि उसका जो यूजेज है वो ही डिफरेंट कर दिया। अब क्या आप उसको यूज नहीं कर सकते? नहीं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन देन अगेन उन्होंने पैकेजिंग इसलिए डिफरेंट कर दी ताकि आप उसका यूज ही डिफरेंट करें। वॉफल्स जो हैं वहाँ यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन जो है उसको उन्होंने डिजर्ट के साथ मिक्स कर दिया, जो कि अब आप हर खाने के बाद जब आप मीठा खाते हैं, जो डिजर्ट खाते हैं, जो हमारे यहाँ जो खीर या फिरनी खाने के बाद खाने को मिलती है, वो वहाँ पे लोग आइसक्रीम के साथ वो वॉफल खाने लग गए। उसका यूजेज ही डिफरेंट कर दिया, तो लोगों को बताने के लिए, ठीक है ना। अब जो है, और जरूरी नहीं है कि आपको जो ये सारे यूजेज पता हो, मकसद एज मार्केटर आपको जो है वो नया यूज डिवाइस करना है और फिर उसको जो है कम्युनिकेट करना है अपने कंज्यूमर को कि ये इस तरीके से भी यूज हो सकता है। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। पोस्टेड नोट्स थे, आज तक ऑफिस में यूज होते थे, लेकिन अब जो है हर घर की जरूरत बन गए। लोग जो है उस पर मैसेज लिखते हैं क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो गई है, और वो कहीं दरवाजे पे चिपका के चले जाएंगे, फ्रिज पे चिपका के चले जाएंगे, टेबल पे रख के चले जाएंगे, सो दैट somebody who is not there when he or she comes back or wakes up would read the message. आज तक जो है लोग फ्रंट कैमरा जो मोबाइल फोन में था उससे अपनी तस्वीर ही खींच रहे थे। अब जो है लोग उससे बात करने, क्योंकि हमारे पास जो है 3G और 4G टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वी कुड मेक वीडियो कॉल्स नाउ। तो अब हम लोगों से, जो दूसरा आदमी जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हम उसकी शक्ल देख सकते हैं और अपनी शक्ल जो है वो हमारी शक्ल देख सकता है। तो यूज जो है वो डिफरेंट हो गया। परहैप्स वो पहले लोगों को शायद नहीं पता था कि वो उस कैमरे का मकसद क्या है, क्योंकि कैमरा तो है वो मकसद, लेकिन अब क्या हुआ कि हमने उसका एक नया यूज ले आए। तो पैकेजिंग जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनको बताती है किस तरीके से। अब अगर आप देखें, आई डोंट नो इफ यू हैव been able to understand or have seen or observed, जो कोक का कैन है उसमें से जब आप उसको खोलते हैं तो वो पूरी स्ट्रिप बाहर नहीं आती है, वो जो है जो ऊपर जो जगह है जहाँ से वो कोक बाहर आता है वो अंदर को चली जाती है, एंड देन वो जो छोटी सी जो टैब है उसके अंदर एक सुराख है। तो अगर आप कैन जो है उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के पीना चाहें तो वो स्ट्रॉ जो है वो अमूमन बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर गैस इतनी होती है, इट फ्लोट्स, वो अपनी जगह पे नहीं रहता। सो वो जो टैब है और उसके अंदर जो होल है वो इसलिए है कि वो उस स्ट्रॉ को होल्ड कर सके। यू जस्ट नीड टू ट्विस्ट इट
and put that straw through that hole into the can. किसी ने बहुत सोच के ये चीज बनाई थी, क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम होगी प्रोबेबली। है ना ऐसी बात। सो जो पैकेजिंग है उसको सोचें, उसको किस तरह बनाना है। जो ये लैपटॉप्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं जो आजकल आते हैं, जो अगर आप उनका बॉक्स खोल के देखें तो उस बॉक्स में एक ही कार्डबोर्ड का पीस है वो, लेकिन उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर उसका चार्जर भी आ जाता है, उसकी USB केबल भी आ जाती है, उसका जो है और जो एसेसरीज हैं वो भी उनके खास खाने बने हुए हैं, और लैपटॉप भी बीच में रखा हुआ है, या टैबलेट भी बीच में रखा हुआ है, या वो कंप्यूटर भी बीच में रखा हुआ है। और जब आप उस डब्बे को खोलते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एंड देन वो जो है सही सलामत दुनिया में कहीं भी आप उसको भेज देते हैं, वो पहुंच जाता है और वो फॉर सेल आ जाता है, शेल्फ पे आ जाता है। सिमिलरली अगर आप देखें जो पाउच आया है ऑलपर्स का पाव वाला, उसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी वो लगा दिया है, पाइप से लगा दिया, जिससे ताकि पोर करने में इजी हो, स्पिल ना करे। नहीं तो पहले होता था कि जब आप वो पाउच काटते थे तो दूध बाहर गिर जाता था। जब वो ट्रायंगल शेप में नेस्ले का मिल्क पैक आया करता था तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि वो जब आपने उसको ऊपर से काटा दूध डालने के लिए तो दूध बाहर गिर गया। गो के वो जो टेट्रा पैक का जो ट्रायंगल था वो बहुत मशहूर हुआ, क्योंकि जो पैकेजिंग थी वो बहुत डिफरेंट थी, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि उसके कोने इतने तेज थे कि वो जो प्लास्टिक बैग जिसमें वो डाल के देते थे वो फट जाया करता था। तो आपको वो कॉर्नर्स टर्न करने पड़ते थे उस ट्रायंगल के, ताकि आप उसको प्रॉपरली यूज कर सकें। अगर आप देखें तो द एंटायर सेट ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स मेक अप द ब्रांड आइडेंटिटी एंड कंट्रीब्यूट ऑल ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स टू अवेयरनेस एंड इमेज। तो and this cohesiveness of brand identity depends on the extent to which the brand elements are consistent. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में आपकी मदद करते हैं, अवेयरनेस को क्रिएट करने में, एक इमेज बनाने में, ठीक है ना। और यही कोहेसिवनेस जो है आपकी आइडेंटिटी को और ज़्यादा बेहतर कर देती है, और क्योंकि एलिमेंट्स कंसिस्टेंट होते हैं। अब अगर आप देखें तो डिज्नी की जब बात आती है तो सबसे पहले मिक्की माउस आपके जहन में आता है। आप वार्नर ब्रदर्स की बात करते हैं तो बक्स बनी फौरन आपके जहन में आ जाता है, ठीक है ना। ये वो कार्टून कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ वी हैव ग्रोन। मिकी माउस 64 इयर्स का हो चुका है, लेकिन इट इज स्टिल यंग। वो एक ऐसी आइडेंटिटी बन चुकी है कि डिज्नी एंड मिकी माउस गो टुगेदर। आपने नाम लिया, साथ ही आपके वो इमेज आपके दिमाग में आने लग गया, ठीक है ना। बक्स बनी जो है वो फौरन आपके दिमाग में, हालांकि अब वार्नर ब्रदर्स जो है आर इनटू मेकिंग मूवीज, they are not anymore a cartoon company. So वो जो एलिमेंट्स हैं, मकसद वो जो पेप्सी का जो ब्लू कलर है और वो जो सर्कल है, इट मेक्स सेंस फॉर देम। मोबिलिंग ने अपना लोगो चेंज कर लिया, कलर्स चेंज कर लिए, जस्ट टू रिमेन रेलिवेंट टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है ना। यू फोन का ऑरेंज कलर आइडेंटिटी है ना। नाउ दैट ऑरेंज कलर जो है वो पूरे जो कवरिंग होगी, जो एरिया सरफेस एरिया का जहां पे वो होगा, वो टेक अवे 60% ऑफ द स्पेस। किसी ने सोचा ही होगा ना ये
एंड रेस्ट ऑफ द 40% गोज टू दैट वाइट एंड ग्रीन और ब्लू वट एवर जिसमें जो भी होता। उन्होंने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप नाम सजेस्ट करें, ये यूफोन की बात कर रहा हूं मैं। तो लोगों ने जो है वोट किया था, उन्होंने 4-5 ऑप्शंस दी थी और वो 4-5 ऑप्शंस में जो लोगों ने जिसको वोट किया उन्होंने फिर उस नाम को सिलेक्ट कर लिया जिसके सबसे ज़्यादा वोट थे और उसी को वो आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। एंड देन देयर स्लोगन, तुम ही तो हो। दे आर पुटिंग देयर कस्टमर्स फर्स्ट, because if those customers are not there, Ufone is nothing. टेलेनॉर को देख लीजिए, टेलेनॉर के जो लेटर्स हैं, जो फॉन्ट वो यूज करते हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। द ब्लू कलर इज वेरी डिफरेंट because it's a technology company. They are using blue. They don't want to be associated with other colors. They are distinct and they stand out. Similarly, Bank Alfla, BCCI के बाद जब वो Bank Alfla बना तो they had different logos and they had different names, but they came up with this Bank Alfla. Their story is a bit long, but they came up with a beautiful logo and the colors, and it is for the good for the people. Private bank but looking after people. Excellent customer service. So ब्रांड आइडेंटिटी बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है कि यू कैन जस्ट वेक अप वन मॉर्निंग एंड हैव दिस आइडिया एंड स्टार्ट पुटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. इट माइट बी ट्रू फॉर समबडी बट इट्स नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी. अब जो है अगर आप एलिमेंट्स की बात करें या आइडेंटिटी की बात करें, मतलब एप्पल इज जस्ट एन एप्पल फॉर एज अ फ्रूट, बट if you see Apple in and on the technology side, something which you could associate with something which is performance related, which is technology related, which is rated as the best amongst consumers in terms of friendliness, in terms of usability. So awareness is there, and whenever you see that logo, you automatically reconnect with that ब्रांड इमीडिएटली. उनकी पैकेजिंग, उनका डिज़ाइन, उनके कलर्स फौरन आपके जहन में आ जाते हैं. उनका जो फाउंडर स्टीव जॉब्स फौरन आपके दिमाग में आ जाता है. जब माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है तो विंडोज़ फौरन आपके दिमाग में आ जाते हैं. वो 4 कलर्स आपको विंडो पेन जो आपके दिमाग में आ जाती है, बिकॉज एवरी डे यू आर यूजिंग दैट कंप्यूटर. विंडोज़ इज देयर. Without Windows, you are not operating your computer. वही उसके ब्लू कलर, उसका वाइट लेटरिंग, those 4 colors, everything. तो वो जो पैकेज है वो आपको फौरन याद आ जाता है. So यहाँ पे we need to understand कि क्या एलिमेंट्स होंगे, क्या ऐसी चीज हम करेंगे, what different we would come up with, ताकि जो है it should make sense to us as producers and to the consumers, ताकि जो एक लिंक है वो ब्रेक ना हो. We should be there for them and they should be there for us. They should feel trusted and they should feel cared about. जो reliability है वो ब्रेक ना हो.
जो ट्रस्ट है वो ब्रेक ना हो, एंड दे शुड बी एबल टू कनेक्ट एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। वो देखें जो है ना, जो लोगोज हैं या वो, अगर आप मिचेलिन का लोगो देखें तो वो एक टायर है और उस टायर के अंदर वो बच्चा है। तो वो भी जो है वो अपने आप को जो है वो लोगो इसीलिए यूज कर रहे हैं कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जी सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना। तो उन्होंने वो लोगो इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों पे बिलीव नहीं करते। अगर आप बहुत सारी जापानीज कंपनीज को देखें, वो सिर्फ नाम के ऊपर एम्फेसिस है, और वो जो नाम है वो डिफरेंट फॉन्ट्स में लिखा जाता है। हर एक ने अपना एक एक फॉन्ट चूज किया हुआ है और वो सारे नाम जो हैं वो उस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। और उसी में से उन्होंने कुछ सिंबल्स निकाल लिए जो कि शुड मेक सेंस टू एवरीबडी, बिकॉज जापानीज लैंग्वेज हैज़ गॉट 900 करेक्टर्स। अगर वो अपने लोगोज जो हैं वो बनाने लग जाएं या उन करेक्टर्स में से कुछ यूज़ करने लग जाएं तो दे वुड नॉट मेक सेंस टू अस, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंग्लिश में वी नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने उसको उस तरीके से लिखना शुरू कर दिया, एक ख़ास फॉन्ट के साथ और ख़ास कलर्स के साथ उन्होंने उनको लिखना शुरू कर दिया ताकि लोगों के जहनों में वो रजिस्टर हो जाए। हमारे यहाँ जो इश्यूज आते हैं वो ये कि हम अभी लॉन्च हम कर नहीं पाते अपना ब्रांड, और हम जो है वो इंटरनेशनल या ग्लोबल होने का सोच रहे थे। इसमें बुराई कोई नहीं है, लेकिन क्या हमने ये सारी एक्सरसाइज की होती है कि हम जो है वो डे वन से ग्लोबल सोच रहे हो ताकि जो है हम बाहर जाके भी सेल कर सकें। हमने अपनी लोकल लोगों के लिए नहीं रिसर्च की होती तो हम बाहर की क्या बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि वो लोकली तो हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो उनको तो नहीं समझ में आते। हम तो वैसे ही थोड़े से कॉम्प्लेक्स लोग हैं। जो कुछ वेस्ट में होता है वो बेहतर होता है, जो हम करते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता। हम कभी भी अपनी लोकल चीज को पैट्रनाइज नहीं करते। सो जब भी आप इस एक्सरसाइज में गुजरें, जब भी व्हेन यू आर मेकिंग अ ब्रांड, you need to understand the elements, the attributes, the benefits, the value it would provide, the brand would provide to the consumers. And then you should, come out with, the name, the logo and other stuff so that, it should make sense to your consumers, and your consumers should be able to relate to you whenever they want. ठीक है ना। और ऐसे ही है कि आप अगर जो पहला नाम है ना वो आपके पास, आपका जो ब्रांड आपका है ना वो आना चाहिए। जैसे वो हर फन मौला होना चाहिए फॉर अ कंज्यूमर, क्योंकि हर मर्ज की दुआ जो है वो आपका ब्रांड हो। दिस इज वॉट यू वॉन्ट एंड दी एंड, नट शेल में मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं आपसे मज़ीद इसी डिस्कशन को आगे लेके चलूँगा, क्योंकि आज हमने सिर्फ ब्रांड नेम्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। हमने पैकेजिंग की बात की है, हमने URL, लोगो, सिंबल, करेक्टर्स इनकी अभी बात नहीं की है। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक जो है नेक्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है, बट देन अगेन it has to be a little better and a longer discussion in that respect, so that you should be able to make a wise decision in terms of choosing these elements when you are choosing or making a brand. ठीक है, you are taking your product
to a brand, you are, having a unique selling proposition or points of differentiation, and those points of differentiation should be sustainable. So if you want to make it sustainable, you need to, really do that research and, take extra time. Just don't jump into it. There's no shortcut. So you need to have that, research with you, and you need to have all the elements present to make a wise decision while making a brand. Thank you very much. See you soon, inshallah. Allah Hafiz.